پھٹنے کا مطلب ہے کہ تاریکی کو روشنی چیرنے والی ہے، اندھیرے کو اجالا چیرنے والا ہے، تاریکی روشنی میں بدلنے والی ہے۔ پاؤں پھٹنے کا پیغام ہے کہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، سنسان ہے، گہراؤں میں اندھیرا ہے، اور اب چند ہی لمحوں میں یہ اندھیرا روشنی میں بدلنے والا ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، ہم پیچھے جب کتاب مقدس پیدائش کے آغاز میں پڑھتے ہیں تو لکھا تھا زمین ویران اور سنسان پڑی تھی، اور گہراؤں میں کیا تھا؟ اندھیرا تھا۔ یہ وہی منظر ہے، وہاں پر بھی اندھیرا تھا، خدا نے یہ فرمایا کہ روشنی ہو جا، اور پاؤں پھٹنے سے پہلے دنیا تاریکی میں تھی، اندھیرے میں تھی، گناہوں میں تھی، مایوس تھی، رونے میں تھی، نا امید کے اندھیروں میں تھی، اور پاؤں پھٹنے والا تھا۔ پاؤں پھٹنے سے روشنی ہونے والی تھی۔ سے وہی منظر دیکھو، وہاں پر بھی تخلیق کا کام ہونے والا تھا، وہاں پر بھی نئی چیزیں وجود میں آنے والی تھی، وہاں پر بھی منظر بدلنے والا تھا، وہاں پر بھی سب کچھ نیا ہونے والا تھا، پرانی چیزیں جانے والی تھی، اور یہاں پر بھی پاؤں پھٹنے کا مطلب ہے کہ سب کچھ بدلنے والا ہے۔ توریت بدلنے والی ہے، کتابیں بدلنے والی ہے، نبیوں کی باتیں پوری ہونے والی ہے، میرے خداوند کا کہا ہوا پورا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ اپنے کہے کے مطابق زندہ ہونے والا ہے۔ اور لکھا ہے پاؤں پھٹنے وقت، یعنی سب کچھ بدلنے والا ہے، نئی روشنی آنے والی ہے، تاکہ انسان نئے سرے سے پیدا ہونے والا ہے، ہیلیلویا، ایک نئی زندگی پانے والا ہے۔ اب انسان جو امید میں تھا، آس میں تھا، آنسیں اڑیک رہی تھی، آنکھیں اڑیک رہی تھی، سانسیں اڑیک رہی تھی، اب وہ جشن میں بدلنے والا ہے کہ یسوع زندہ ہونے والا، یہ منظر ہے۔ اور پاؤں پھٹتے وقت لکھا ہے مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھ لیں۔ اب دیکھ لیں، میں یہ سمجھتا ہوں یوسف ارمتیا کا جو رہنے والا تھا، اس کی زندگی پر میں رات کو اسٹڈی کر رہا تھا کہ وہ اب ایسے یسوع کے پاس جانے والا ہے جو یسوع زندہ نہیں بلکہ لاش پڑی ہے۔ وہ یسوع جو معجزات کر رہا تھا، بہت کچھ کر رہا تھا، جو انسان اس سے مانگ رہا تھا اس کی خدمت کے دوران وہ اس کو مل رہا تھا، اب یسوع کی لاش پڑی ہے۔ اور یوسف ارمتیا جس کے بارے میں لکھا ہے وہ یسوع کا شاگرد تو تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ دولت مند بھی تھا، کہ جتنے کو دولت ہوئے ہوتی تو ویسے ہی وہ خراب ہوگی، اس کی تو سوچ ہی بڑی بلند ہوتی ہے۔ بھائی منو ہون کی چاہیے اس لاش کو، میرے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، روپیہ پیسہ ہے، اب میں اس لاش کا کیا کروں گا؟ اب مجھے تو کوئی معجزہ چاہیے نہیں، میں اب اس سے کیا لوں گا؟ یوسف ارمتیا کی محبت کو دیکھے، اس نے بیلوس خداوند سے محبت کی ہے، آگے بڑھ کر کہا یہ لاش مجھے دے دو۔ اور اس کا مطلب ہے ایک ایسا ایماندار ہے، معجزہ ہوئے نہ ہوئے یسوع نہ دلوں نہیں چلے، ہیلیلویا۔ یہ ایک ایسا ایماندار دکھائی دے رہا ہے، خداوند میرے حالات بدلے نہ بدلے، میرے خداوند گھر کے حالات تبدیل ہو نہ ہو، میرے زندگی میں معجزہ چاہے نہ ہو، لیکن خداوند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اور یوسف ارمتیا نے لاش کو لیا ہے اور پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش
मांगी, पिलातुस ने दे देने का हुक्म दिया। यूसुफ ने लाश लेकर साफ मुहीन चादर में लपेटा है। लाश यीशु की है, चादर यूसुफ के पास है। यीशु के पास अब यीशु कुछ चाहिए नहीं है, चादर उसकी लाइफ को प्रेजेंट कर रही है। वो महीन साफ खूबसूरत जिंदगी को जाहिर कर, खुदावन मेरी जिंदगी में चाहे नहीं पहुंचता, अभी तू मेरे लिए किसी अड्डे को जिंदा करने वाला नहीं है, अभी तू मेरे घर में किसी को माफ करने वाला, गुनाह माफ करने वाला नहीं है, अभी तू किसी लंगड़े को चलाने वाला नहीं है, अभी तू कोई मुर्दा जिंदा करने वाला नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी खुदावन पाकीज़गी से खुदा तेरे साथ चलती रहेगी। मैं तेरा हूं खुदा, हर हाल में खुदा मुझे तू चाहिए। ये पैगाम है। और यूसुफ ने महीन लाश में, और लिखा फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चट्टान, और लिखा सॉरी अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खदवाई थी, उहदे विच यूसुफ अपनी कब्र। इसका मतलब है कि अब मैं जिंदा न रहा, अब मेरी पुरानी लाइफ इस कब्र में जाने वाली है। अब यीशु नहीं कब्र में, बल्कि मेरी लाइफ, मेरे गुनाह, मेरी तारीकी, मेरी पुरानी जिंदगी इस कब्र में जाने वाली है। और लाश को कब्र में रख दिया, अपने आप को भी उस कब्र में रख दिया। अब मैं जिंदा न रहा, बल्कि मसीह मुझे जिंदा है। पाँव फुटने के वक्त एक नया उजाला होने वाला है। और इसी तरह ये बहनें भी जो है, ये भी मुर्दा यीशु के पास जाने वाली है। इनको भी पता है वहां पर यीशु की लाश होगी, लेकिन यीशु की मोहब्बत ने सारी रात इनको सोने नहीं दी। जिन्हां नूं यीशु नाल मोहब्बत हो जाती है, उन्हां दी वैसे नींदरां उड़ जाती हैं। हालेलुया। अब उनको नींद प्यारी नहीं रहती, वो रात के पहरों में उठ उठ कर यीशु से बातें करते हैं। अब ये इतनी मोहब्बत में यीशु के गिरफ्तार है कि ये लिखा है कलाम मुकद्दस में कि ये बहनें किस कदर नडर हो गई हैं कि रात का वक्त है, सुनसान है, रास्ते वीरान है। उन इलाकों में से गुजर कर उस कब्रिस्तान में जाकर रात के 2:30 बजे 2 बजे 3 बजे किसी भैन को वहाँ जावे है कब्रिस्तान। 4-5 भैन भी रल गए है ना, असी को जाइए कब्रिस्तान जाना पवे से। हाँ जी, लेकिन खुदावंद यीशु की मोहब्बत इस कदर इनके अंदर काम करी है कि ये उठी है और यीशु को जाकर देखने के लिए उसकी कब्र पर जा रही है। और लिखा है ये रास्ते में कह रही है कि हमारे लिए पत्थर को कौन उठाएगा, क्योंकि यीशु की कब्र पर एक भारी पत्थर पड़ा है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जिसके बारे में लिखा है वो समुद्रों को अपने चुल्लू में और पहाड़ों को अपने पलड़े में उठा लेता है। उसने उनके आने से पहले ही फरिश्तों को भेज दिया था। और लिखा है फरिश्ता पत्थर को लुढ़का कर पत्थर के ऊपर बैठा है। कितने बैठा है? वो पत्थर के ऊपर बैठा है, ताकि अब से तेरी लाइफ में, तेरी जिंदगी में कोई तेरी प्रॉब्लम जो पत्थर की मानिंद है, कोई बीमारी पत्थर की मानिंद है, जो जिंदगी के हालात पत्थर की मानिंद है, तेरे घर के हालात पत्थर की मानिंद है, मैंने उनको लुढ़का दिया और ऊपर बैठा हूं। जब मैं ऊपर बैठा हूं तो कोई इसको वापस वहां पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब से यीशु जिंदा है और वो अपने कहे के मुताबिक जिंदा है। यीशु जिंदा है। उन्होंने कहा किन्हों लग दिया ये? हाँ, हम यीशु को देखने के लिए आए। उसने कहा अब वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अपने कहे के मुताबिक वो उठा है। हालेलुया। वो अपने कहे के मुताबिक
अपने कलाम के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक, अपनी जुबान के मुताबिक। और यीशु वादे का भी पक्का तो जुबान का भी पक्का। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा, तो कहते उस धोखेबाज ने कहा था, उस वक्त की कहते से लोग, उस धोखेबाज ने कहा था ये धोखा उसका पहले धोखे से भी ना बड़ा हो जाए। लेकिन सारी चीजें बड़ी कोशिश उन्होंने की कि हम इस बात को दबा दे, ये ना हो, ये ना हो। याद रखे, कलाम मुकद्दस में से अगर इस आयत को, इस वर्ष को निकाल दिया जाए तो ये किताब लाइब्रेरियों की किताब बन जाए। एक वर्ष, और वो वर्ष है मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ, और अगर इस वर्ष को बाइबल मुकद्दस में से मिटा दिया जाए तो याद रखे ये बाइबल लाइब्रेरियों की किताब बन जाए। सिर्फ 3 लफ्जों की बात कि वो जिंदा है, इसने सारी कायनात को अपनी लपेट में ले लिया। लोग हैरान हो गए कि जो एक दिन के मुर्दे को तो जिंदा करता था, जो 4 दिन के मुर्दे को तो जिंदा करता था, अब ये कैसा माजरा हो गया कि वो अपने कहे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से खुद भी जिंदा हो गया। एक बड़ा बुझान है, बुझान आना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। जिंदगी में जोड़ना बड़ा जरूरी है। जितनी देर तक झंझोड़ियां नहीं जान गया, इन्होंने किवें पता लगेगा कि यीशु जिंदा हो गया। अपने अंदर यीशु को जिंदा करें। हाले बड़े लोग जिहड़े ने वो मुर्दा ही, हां जी, मुर्दा यीशु ਨੂੰ ਚੋੜਦੇ ਲੱਗੇ, ਸਲੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? हां जी, ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਦਾ ਯीशु ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਲੀਬ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? सलीब उत्ते यीशु बनाया, कोई पैरों में चुम रहा होता है, कोई मुंह में चुम रहा होता है, उनके लिए अभी तक यीशु मुर्दा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। चर्चा चले जो भैना भी, मैं कहना वा जाके सलीब दे अगे वो बेसिक उत्ते जिहड़ा स्टैचू बनया होंदा है उन्होंने जाके चुम रही होंदी है। ओ भाई, ओ अकल दे अंधे हो। दुनिया हैरान ने इस गल ते कि दुनिया की बहुत एक खबर है जड़ी खादी है, तो तुसी हाले इत्थे अड़े पे जे। हाँ जी, हाले भी वो पूरा जनाजा कटदे ने पादरी साहब, सलीब उत्ते यीशु नूं लटाया हुंदा, वो पूरा जनाजा मैयत पढ़दे ने उहदे ते। उनके लिए अभी तक यीशु मुर्दा है, क्योंकि वो खुद मुर्दा है। यीशु मुर्दा नहीं है। उनकी लाइफ, उनकी सोच, उनके ख्यालात, उनकी तालीम मुर्दा है। वो हाले जाके पैरों में चुम रहे होते हैं, नहीं नहीं यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी कर, तू सब कुछ करेगा, और नहीं नहीं नहीं। इस खाली क्रॉस को, ये पहले तो लानत का निशान थी, लेकिन हम मसीहियों के लिए अब ये फतह का निशान बन चुके हैं। हालेलुया। खाली कब्र और खाली क्रॉस पूरी दुनिया के लिए हरा देने वाला पैगाम है। लोग हैरान हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं, और भाई ये किस लिए सलीब उठाते हो, और भाई ये क्यों नारे लगाते हो, और तुम क्यों जुलूस निकालते हो, और तुम क्यों जश्न मनाते हो? दुनिया के लिए पैगाम है कि हमारा यीशु जो मर गया था, दफन हो गया था, अब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। अपने खुदा के लिए जोरदार तालियां। यीशु जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं, आंख को बंद करें और दुआ करें।